Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology tutorials. In previous lectures, I discussed detail about the oxidative decarboxylation where pyruvic acid converted into acetyl coenzyme से the acetyl coenzyme से so the link reaction मैंने ये बात बताया था कि acetyl coenzyme से linked with the Krebs cycle, therefore they are completely oxidized. Today now we are going to discuss the new metabolic cycle that is known as Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle. So first of all, why it is called and Krebs cycle? So one scientist, Dr. Sir Hans Krebs, Dr. Sir Hans Krebs discovered this pathway, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? Krebs cycle. Why it is called and TCA cycle? TCA cycle का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक acid cycle. Why it is called and because the first stable product of Krebs cycle is what? Citric acid or citrates. The citrates having three carboxylic groups. Therefore this cycle is known as TCA cycle. इसको हम क्या बोलेंगे? TCA cycle. क्लियर हुआ? क्यों इस TCA cycle का नाम दिया? Because the first stable product of the Krebs cycle is what? Citrate or citric acids having three carboxylic groups. Therefore the Krebs cycle is also known as TCA cycle. Why it is called an citric acid cycle? Because the first stable product of the Krebs cycle is what? Citrate. So therefore this cycle is known as citric acid cycle. ठीक है? हाँ. Next important points. It's occur in a cyclic process occurs in mitochondrial matrix के अंदर पाई जाती है. बिकॉज therefore this pathway is known as aerobic pathway. इसको हम क्या बोलेंगे? aerobic pathways. ये हमेशा रिमेंबर रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऑलवेज जो भी रिएक्शन को प्रोसीड करती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो चाहे इसके पहले वाला जो हमने बात किया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, Krebs cycle is also takes place in the mitochondrial matrix, and both the metabolic pathway proceed presence of oxygen molecule. So this type of pathway is known as aerobic pathway. Next, it is also known as amphibolic pathway. Amphibolic pathways means here both the type of reaction takes place, anabolism as well as catabolism. तो both the reaction takes place in here. दोनों होते हैं. क्यों ऐसा होता है? Because the some intermediate product of the Krebs cycle, anabolism में वहीं यहाँ पर आता है कि some intermediate product of the Krebs cycle involve for the synthesis of some other chemical compound like amino acids. वो अमीनो एसिड तो आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द Krebs cycle इज द प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड. तो देयरफॉर दिस पाथवे इज नोन एज एम्फीबोलिक पाथवे. ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि हमने जब डिफिनेशन आपको दिया था तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था इंट्रासेलुलर एंड कैटाबोलिक प्रोसेस. तो रिस्पिरेशन जो होता है वह कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन का काम करता है. बट यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहाँ पर एडिशन भी होंगे, 2 से 4 मिलकर 6. अभी Krebs साइकिल के स्टेप्स में वो क्लियर होगा. तो यहाँ बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म. It is
completed into 9 steps. 9 steps. कितने स्टेप्स होंगे? 9 स्टेप्स. और उसमें जो 4 स्टेप्स होंगे एंड ईच स्टेप हैविंग स्पेसिफिक एंजाइम. तो देयरफॉर 9 एंजाइम्स इन्वॉल्व इन Krebs cycle and all the enzymes present in the mitochondrial matrix. In 4 steps, इसमें से 9 स्टेप्स में 4 स्टेप्स शो ऑक्सीडेशन को शो करते हैं. ऑक्सीडेशन एंड वहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? 3NAD कन्वर्टेड इनटू 3NADH2 में कन्वर्ट होगी. एंड हियर अनदर 1FAD कन्वर्टेड इनटू 1FADH2 में. ये आपने देखा कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा. यहाँ पर ही ध्यान देना कि ये जो कोएंजाइम्स आर रिड्यूस्ड in the form of NADH2 or FADH2, as well as two steps so decarboxylation process. Decarboxylation means removal of carbon dioxides from the substrates. In the second 2 steps so decarboxylation process, here रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट एसिटिल कोएंजाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था. एसिटिल कोएंजाइम से आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज देन रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए स्टेप वाइज मैनर. यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिटिल कोएंजाइम से हमने बताया था ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम से. हियर 2 एसिटिल कोएंजाइम से आर इन्वॉल्व. यहाँ पर 2 एसिटिल कोएंजाइम से होंगी. तो ये ध्यान देने का है. और एसिटिल कोएंजाइम से आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज देन रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टेप वाइज मैनर. The Krebs cycle completed into 2 टर्न. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 टर्न मतलब Krebs cycle 2 बार चलती है. ये ध्यान देना. कैसे कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, here is the 1 glucose are break down in 2 molecules of pyruvates. ये 2 molecules of pyruvates and 2 molecules of pyruvate converted into 2 molecules of एसिटिल कोएंजाइम में. कि अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल्स जो होगा एसिटिल कोएंजाइम में एंड अनदर एसिटिल कोएंजाइम से. और ये लिंक करेगा Krebs साइकिल और ये भी लिंक करेगा Krebs साइकिल. तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से Krebs साइकिल कितने होंगे? 2 टर्म्स होंगे. बिकॉज द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम से. द 1 एसिटिल कोएंजाइम से लिंक्ड विद 1 Krebs साइकिल, अनदर एसिटिल कोएंजाइम से लिंक्ड विद अनदर Krebs साइकिल. तो ये 2 बार चलती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ Krebs साइकिल. नेक्स्ट द स्टेप्स ऑफ Krebs साइकिल. हियर इज द 9 स्टेप्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So discuss one by one detail. The first steps is known as condensation. In the condensation state में क्या हो रहा है? Here is the oxaloacetate. They are present in the mitochondrial matrix. Here is the oxaloacetate having 4 carbon compounds. They are bind with acetyl coenzyme A plus added water molecules. यहाँ पर water molecules भी add हो रहा है. Therefore they are converted into citric acid citrates having 6 carbon compounds plus releases
कोई एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम ए रिलीज हो जाती है, देन अगेन यूज इन ईयर कोई एंजाइम्स ए with the help of enzyme citrate synthetase, citrate synthetase. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्यों हुआ? बिकॉज द टू मॉलिक्यूल्स द ऑक्सैलोएसिटेट दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अकेला ये पड़ा रहता है. व्हेन स्टिल कोई एंजाइम से इंटरैक्ट विथ ऑक्सैलोएसिटेट से जैसे इंटरेक्ट करता है, देन स्टार्ट क्रेब्स साइकिल. Krebs cycle start out and both the molecules they are joined having 2 carbon, ये 2 carbons होंगे and 4 carbon both are joined to form a 6 carbon compound that is known as citrate or citric acid. as well as जो coenzymes यहाँ से लिंक है due to action of water molecules break down हो जाता है and coenzymes are released हो जाती है, again used in link reaction. This is the first step. Second steps of the Krebs cycle that is known as isomerization. Isomerizations it included 2 steps. First is dehydration. Dehydration में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ. तो यहाँ पर क्या हुआ? द साइट्रेट्स क्या होगा? यह द 6 कार्बन कंपाउंड्स देन वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू फॉर्म सिस एकोनिटिक एसिड. cis aconitase having 6 कार्बन कंपाउंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन इन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज हो रहा है एंड देन सेट्रेट कन्वर्टेड इनटू cis aconitase हैविंग आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड. ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड होगा. एंड द नेम ऑफ द एंजाइम्स फाउंड aconitase. The name of the enzyme is what? Aconitase plus iron के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. हम सभी जानते हैं कि एंजाइम इज व्हाट? एंजाइम इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. इट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. तो उस रिएक्शन को फास्ट करता है. तो हमने बताया था कि 9 स्टेप्स, 9 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एंड ऑल द एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. आइसोमराइजेशन हैविंग 2 स्टेप्स. फर्स्ट इज द डिहाइड्रेशन and second is the hydration. Hydration means addition of water molecules. तो ये हाइड्रेशन में क्या हो रहा है? आप ये देख सकते हो, here the water molecules are added. After that cis aconitase converted into isocitrate. तो यहाँ पर क्या होगा? The cis aconitase added the water molecules. After that converted into isocitrate. Isocitrate having 6 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा. सेम एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन हियर. तो बोथ द रिएक्शन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन, बोथ द रिएक्शन सो आइसोमेराइजेशन प्रोसेस. व्हाई इट इज कॉल्ड एन आइसोमेराइजेशन? हमने आप केमिस्ट्री में बार बार ये पढ़ते हो. इफ द केमिकल फार्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर आर क्वाइटली डिफरेंट विथ ईच अदर, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस के नाम से ये जाने जाते हैं. क्लियर्स? एंड थर्ड स्टेप्स. नेक्स्ट थर्ड, here is the third steps. Here isocitrate converted into oxalosuccinate. Here the third steps is known as oxidation. अब देखो 4 जगह मैंने ऑक्सीडेशन बोला. ऑक्सीडेशन फर्स्ट, और इसी को दूसरा नाम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट. डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट मीन्स रिमूवल ऑफ, इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ H2 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होगी. तो यहाँ पर जब रिमूव होगी तो हियर द कोएंजाइम्स NAD निकोटीना एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स. NAD क्या है? NAD का जो पूरा नाम होगा वह होगा निकोटीना एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो ये इट इज ए टाइप ऑफ कोएंजाइम्स. द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स आर रिड्यूस्ड इन हियर. तो यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रही है, क्या हो रही है? आइसोसाइट्रेट प्लस NAD कन्वर्टेड इनटू
oxalo converted into oxalosuccinate प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म जो थी वह रिड्यूस हो गई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम द आइसोसिट्रेट एंड दिस H2 मॉलिक्यूल्स पिक अप बाय द कोएंजाइम्स NAD एंड देन NAD कन्वर्टेड इनटू NADH2 एज वेल एज आइसोसिट्रेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो ऑक्सैलोसक्सिनेट इज आल्सो हैविंग ए 6 कार्बन कंपाउंड। ये भी कितने होंगे? अभी 6 कार्बन कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप्स इज decarboxylation फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर रिमूव हो रही है द ऑक्सैलोसक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट हैविंग 5 कार्बन कंपाउंड्स। तो हियर यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सैलोसक्सिनेट्स converted into alpha ketoglutarate plus release carbon dioxide with the help of enzyme oxalosuccinate decarboxylase, oxalosuccinate decarboxylase enzyme, decarboxylase. दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये बार बार ये नेट क्वेश्चंस में भी आपको पूछा जाता है, नेम ऑफ द 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द क्रैब साइकिल। तो वह क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट्स वनली एक ही ऐसा 5 कार्बन कंपाउंड्स है जो आपको मिलता है, रेस्ट या तो आइदर 6 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड्स के आपको मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट द फिफ्थ स्टेप हियर, oxidation and decarboxylation second, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड। या आप देखो इस स्टेज में देख सकते हो अल्फा कीटोग्लूटरेट्स में यहाँ पर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज क्या हो रहा है, removal of H2 and this H2 pick up by the coenzymes NAD, they are converted into NADH2। तो ये ऑक्सीडेशन को शो किया और ये किसको शो किया, डीकार्बोक्सिलेशन को। तो बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हियर, सेकंड बार होने जा रहा है, फर्स्ट बार हो चुका है। तो ये द अल्फा कीटोग्लूटरेट्स में आपने देखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, NAD भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, देन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रही है, सक्सिनिल प्लस को एंजाइम से इज आल्सो इन्वॉल्व इन हियर, सक्सिनिल को एंजाइम्स A प्लस NADH2। और आपने देखा कि यहाँ पर यह जो था वह रिड्यूज हो गया इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर रिड्यूज हो जाता है को एंजाइम इज आल्सो। यहाँ पर जो को एंजाइम्स होते हैं ये यहाँ से रिलीज होते रहते हैं और यहीं पर ये जाते रहते हैं। तो को एंजाइम्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। देयरफॉर अल्फा कीटोग्लूटरेट्स प्लस रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल को एंजाइम से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स अल्फा कीटोग्लूटरेट dehydrogenase। This is the name of the enzymes involved in these reactions। तो अभी 4 कार्बन कंपाउंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 रिएक्शन साथ हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन में NAD कन्वर्टेड इनटू NADH2 एज वेल एज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट 6th स्टेप, 6। Here is the 6 steps. Here the 2 reaction takes place in here.
addition of water, that is known as hydration plus and phosphorylation, formation of ATP, phosphorylation, हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। तो आप देखो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हियर। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, सक्सिनिल को एंजाइम ए प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एडीपी प्लस पीआई कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट प्लस एटीपी प्लस रिलीजेस को एंजाइम ए with the help of enzyme thiokinase. This is the name of the enzymes. तो आप यहाँ पर देख सकते हो दो रिएक्शन हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। तो जब एडिशन होता है तो इसके साथ जो कोएंजाइम्स लिंक होती है सक्सिनिल के साथ वो ब्रेक हो जाती है ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस एंड देयरफॉर कोएंजाइम्स जो होती है वह रिलीज होकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, आफ्टर दैट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीडीपी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। जीडीपी क्या है, गुआनिन डाइफॉस्फेट, दे आर कन्वर्टेड इन गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज a type of actually the chemical, actually the energy levels is similar to the ATP molecules but it is not a stable product. तो GTP क्या है, stable product नहीं होगा। GTP is not a stable product, it is not stable product, stable product, ये stable product नहीं होगा। Ultimately GTP converted into ATP, तो यहाँ पे ATP में कन्वर्जन होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो 6 स्टेप्स में क्या हुआ कि 2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हियर। फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ ATP दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट, seventh steps. Here the oxidation, again oxidation takes place. Oxidation third or dehydrogenation third. In here succinic acid or succinates plus FAD converted into fumarate plus FADH2 with the help of enzyme succinate dehydrogenase. Then here the FAD is what? FAD is a type of coenzymes. They are present in the mitochondrial matrix. It is also known as flavin. What is the full name of the FAD? Flavin, adenine dinucleotides. This is the full form of the FAD. The FAD is what? FAD is a type of coenzymes. ये coenzymes होती है। In this reaction succinate क्या कर रहा है, removal of H2 molecule and this H2 molecules pick up by FAD then converted into a reduced form of the coenzyme that is known as FADH2 and this type of reaction is known as oxidation reaction or dehydrogenation reaction. Next 8. Here is the 8 steps. Here is the hydration reaction takes place. हाइड्रेशन मीन्स क्या हो रहा है, हियर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड हियर, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, द फ्यूमरेट्स प्लस H2O देन कन्वर्टेड इनटू मैलेट्स with the help of enzyme analase. This is the name of the enzymes involved in this process that is known as
analyze, and this process is known as hydration reaction because the water molecules are added through fumarate molecules. Therefore, the fumarates converted into malate. So succinate is also 4 carbon compound, fumarate is also contains 4 carbon compound, and malate is also contains 4 carbon compound. The last steps of the Krebs cycle, that is known as, then again oxidation takes place. And the 9th steps is what? Oxidation fourth. Oxidation fourth or dehydrogenation fourth. In here, malates converted into oxaloacetate. Here is the malate plus NAD. Therefore, they are converted into oxaloacetate plus NADH2 with the help of enzymes malate dehydrogenase. This is the name of the enzymes involved in these reactions. यहाँ पर आपको हुआ वापस हो रहा है कि रिमूवल ऑफ H2. यहाँ पर से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ H2. यहाँ से H2 निकला और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ NAD. NAD इज व्हाट? हमने पहले भी डिस्कस किया. NAD इज अ टाइप ऑफ कोएंजाइम्स. ये कोएंजाइम्स होती है. दिस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स आर रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH2. दिस इज द लास्ट स्टेप्स ऑफ द Krebs साइकिल. तो हमने कितने स्टेप्स में पहले बात किया था कि 4 स्टेप सो ऑक्सीडेशन. तो 4 स्टेप्स में कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ steps show oxidation process and 2 steps show decarboxylation process. So decarboxylation 1 and 2 steps show decarboxylation process. Next, overall, this is the photograph of डॉक्टर हैंस क्रेब्स. इन्होंने, मैंने बात जो किया था पहले डिस्कस किया था कि इन्होंने ही क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था. ही गॉट ए नोबेल प्राइज़ इन 1958. ठीक है. हियर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल. मैंने जो बात बताया था कि ये 9 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. और ऊपर आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. तो फर्स्ट स्टेप्स वो आपको वहाँ पर ऑक्सैलोएसीटेट एसिटिल कोएंजाइम से मिलकर सेट्रेट बनाया. फिर सेट्रेट का कन्वर्जन आइसोसेट्रेट में दिख रहा है. आइसोसेट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट्स, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोएंजाइम से टू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट टू मैलेट और मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट. तो मीन्स अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी समरी आपको मिल रही है. बट मैंने डिटेल में स्टडी किया कि होल Krebs cycle completed in 9 steps and each steps having specific enzymes. Therefore 9 enzymes involved in this metabolic pathway. और ये मैंने भी पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये साइक्लिक पाथवे होता है. दे आर टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरोबिक पाथवे के नाम से भी इसको हम जानते हैं. हमने ये भी आपको डिस्कस किया है कि इसके 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है. जहाँ जहाँ NADH2 में रिड्यूस्ड हो रही है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. जहाँ FADH2 में रिड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. और जिस पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड्स, 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 ऐसे स्टेप्स हैं रिएक्शन के जहाँ पर रिलीज हो रही हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन. तो अगर कोई, मैंने ये भी बात बताया था कि नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम Krebs साइकिल इन 1 टर्न्स ओनली 1 ATP रिलीज इन 2 बिकॉज द Krebs साइकिल कंप्लीटेड इन 2 टर्न बिकॉज 2 एसिटिल कोएंजाइम्स आर फॉर्म. चलिए इतना तो हो गया मेरा. reaction of the Krebs cycle. The overall reaction of Krebs cycle. In here, acetyl coenzyme A plus 3NAD plus 1FAD plus ADP
प्लस Pi प्लस 4H2O प्लस 4H2O कन्वर्टेड इनटू इन द Krebs साइकिल। ध्यान देना है कहाँ पर, इन द Krebs साइकिल कन्वर्टेड क्या होगा, इन उसका प्रोडक्ट क्या आएंगे 2CO2 प्लस 3NADH2 प्लस 1FADH2 प्लस ATP प्लस ATP, हियर द प्रोडक्ट ऑफ द Krebs साइकिल। हमने पहले भी डिस्कस आपको किया द Krebs साइकिल कंप्लीटेड इन 2 टर्म्स। ये 1 टर्म्स का ये प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 टर्म। ये 1 टर्म का होता है, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम से। अब 2 मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल एक बार ये रन कर रहा है तो 2 बार ये करेगा। तो अब 1 टर्म्स में इतना है तो 2 टर्म्स में कितना हो जाएगा, 2 टर्म प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल, इसी का जस्ट वो डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4CO2 प्लस 6NADH2 प्लस 2FADH2 प्लस 2ATP। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द Krebs साइकिल फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एक क्वेश्चन हो जाता है ATP पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आप देख सकते हो कि कहीं पर ATP बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही है, लेकिन बिफोर ETS आफ्टर ETS की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइट जो होती है वो फाउंड इन द Krebs साइकिल, बिकॉज द 4 इंपॉर्टेंट साइट्स आर पॉइंट्स सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जहाँ जहाँ पर हमारी कोएंजाइम्स रिड्यूस्ड हुई थी वह ATP जनरेट करती है एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर एक क्वेश्चन पूछे कि नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम Krebs साइकिल, तो आपको ये नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम Krebs साइकिल बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो कितना होगा ओनली 2 ATP। कैसे, क्योंकि एक बार ये साइकिल चल रही है ATP कहाँ पर दिख रहा है, केवल एक जगह दिख रही है, रिलीज हो रही है, और कहीं पर भी आपको ATP जनरेट नहीं हो रही है। तो आपको देखकर आप बता सकते हो कि अगर कोई पूछे कि नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम Krebs साइकिल ओनली 2 ATP। अगर कोई पूछे नेट गेन ऑफ ATP आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम Krebs साइकिल, तो कितने हो जाएंगे, अब उसके बारे में हम ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो था बिफोर ETS Krebs साइकिल, बिफोर ETS जो था 2 रेवे। अगर पूछा कोई नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम Krebs साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, तो आपको आप बताओगे, आपको क्या होगा कि हमने क्या कहा कि 1 टर्म्स में कितने हो जाते थे आपको 3NAD, तो पूरे में कितने हमने बताया था अभी 6NADH2 फ्रॉम 2 टर्म्स एंड 2FADH2 आर फॉर्म फ्रॉम द Krebs साइकिल। ये बनता है व्हेन दिस कोएंजाइम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाते हैं, दोनों जाते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ETS में डिटेल में बात करेंगे। तो देन कन्वर्टेड इनटू 6NAD ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड प्रोड्यूसेस 18 ATP। कैसे ये होगा 18 ATP कि बिकॉज द 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP, तो 6 NADH2 प्रोड्यूसेस 18 ATP and 1 FADH2 produces 2 ATP, तो 2 FADH2 produces 4 ATP। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2FAD प्लस 4 ATP, तो कितना हो जाएगा टोटल 22 ATP जो होती है वह
ऑब्टेन्ड होगी फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, ध्यान देना, व्हेन एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो टोटल नेट गेन अगर पूछा गया, तो टोटल नेट गेन आफ्टर ETS फ्रॉम क्रेब्स साइकिल तो कितना हो जाएगा 22 प्लस ऑलरेडी 2 पहले से है 2 ATP। देयरफॉर कितने हो जाएंगे 24 ATP ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। ध्यान देना कि जहाँ जहाँ पर ये होते हैं रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स, या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे देन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और 1 NADH2 ऑलवेज प्रोड्यूसेस 3 ATP, तो 6 NADH2 प्रोड्यूसेस 18 ATP, और 1 FAD ऑलवेज प्रोड्यूसेस 2 ATP। तो देयरफॉर इसी प्रकार क्या होगा 2 FADH2 प्रोड्यूसेस 4 ATP। तो टोटल 22 ATP रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द 2 ATP इज released during the Krebs cycle. The total 24 ATP are generated from the Krebs cycle after the completion of the aerobic respiration। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई नेट गेन ऑफ ATP अगर Krebs साइकिल से पूछता है तो वो लीड टू ATP। आप कोई पूछे कि नेट गेन ऑफ द ATP फ्रॉम Krebs साइकिल आफ्टर ETS, तो आप तुरंत बोलना 24 ATP रिलीज फ्रॉम द Krebs साइकिल। तो इस तरह से हमने पूरी Krebs साइकिल पर डिटेल में स्टडी किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।